अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम्म। Okay, everybody come and try to speak about your childhood. About your childhood. What did you used to do? And if you have some memories, please explain in your own words. Yeah. I know I have already given this topic, but now let's see how many of you are ready now also to speak more beautifully. देखता हूँ within 2 minutes who is coming. आप में से हर बच्चे के अंदर ये चीज तो पैदा होनी ही चाहिए, चाहिए थी कि आपको कोई टॉपिक अगर दिया जाए तो कम से कम 5-10 सेंटेंस आप उस पर आके बोल लें, बगैर तैयारी के बोल लें यार। तैयारी करने की क्या जरूरत है? बचपन की चीजें याद नहीं कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था, कभी कभी मैं उनकी चीज ले लिया करता था। मेरे दोस्त एक मेरा दोस्त है, मुझसे बहुत चिढ़ा करता था क्योंकि मैं जब भी कहीं परफॉर्म करता तो अच्छे से परफॉर्म किया करता था। मेरे वालिद साहब बचपन में मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाया करते थे। वो मिठाई बहुत खाया करता था। मेरा भाई अगर वो अपने लिए उठा कर रख देता था, मैं चुपके से उसकी भी खा लिया करता था। 1 करोड़ बातें याद होती हैं आदमी को मेरे भाई। उनको अंग्रेजी कपड़े तो पहनाने हैं बस।
ओके, इनवाइट नाजनीन। देख के नहीं पढ़ना है बेटी। हम्म। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Um, I was a child. I was my childhood. I eat very sweet and sweet very much, and I play my siblings. I have a six sister and two brother. I'm playing. I'm fighting each other. I'm a very naughty girl, and month I we go garden. Other month we go beaches. Other month we go meeting families. And my twin sister, I my childhood very fighting, and I she do drawing. I broke them, and my favorite also. I'm doing drawing so much. So my mother was angry, my sister and I'm very fighting each other. So, but nowadays we very friendly and very lovely sister. But my childhood, I'm very angry. My sister, twin sister, my and I make a childhood. I make very much cooking. So I help my elder sister, and we I want to clean house everything. I so much doing these things, and my childhood I'm thinking everything do new skills. So I'm teaching dress and other doll. My have a doll. I teaching the dress. Every teaches. I don't know what I but make to because I have a new skill to try. So I make ice cream. I teaches my doll dress and drawing handkerchiefs. Some drawings I'm teaches, and I comb my dolls and drawings. That's it. Okay, ओके। sir. चलो अच्छा बेटी, माशाल्लाह। हम्म। फातिमा शाह। अस्सलाम वालेकुम sir. वालेकुम अस्सलाम। My childhood was a very happy time. I used to play with my friend every day. I love to listen stories from my father. I enjoyed playing with toys and games. My childhood days were full of fun and laughter. I went to school with a small bag and lunch box, and school timing friends eating golas and snacks. I remember celebrating festivals with my family. Those days of childhood can never come back. My father bring me a chocolate and my favorite snack and fruits. My childhood is the sweetest memory of my life. ओके, शाबाश बेटी, बढ़िया, माशाल्लाह। अफशीन फातिमा। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Uh, in my childhood, I used to play with my friends and cousins, and in holidays. And my father always brings chocolate for me when he comes to home. And I always get stubborn whenever it comes to eat outside. And I love them very much. ओके, माशाल्लाह, अच्छा बेटी, शाबाश। रोजी। हम्म। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। One of my favorite childhood memories is the time I spent my childhood mostly at grandparents' house during summer vacation. Every year, my families would visit their home in village. I'm belong visit small village like Darbhanga. I'm from Darbhanga. The place was peaceful
and there was a small river near where I wait to cool off on of the hot day. I remember wake up early in the morning to the sound of birds, and after that breakfast I would run outside and play with cousin. We would climb tree, play hide and seek, and sometimes we would take walk to run back. These moments from my childhood remind me of a sleeper time when life was full of adventure, the time spent with my grandparents, the fun with my cousin, and peaceful days by the river will always be a special parts of my childhood and my memories. ओके, शाबाश शाबाश, बढ़िया बेटी। जुनैरा, Assalamu alaikum, sir. प्लीज बेटी। When I was child, I used to eat too much chocolates, and I still have this habit. When I was child, everyone brought chocolates for me and my brother, and I did fight with my brother because of that, and sometimes without any reason. And when I was child, when I got Diwali vacation, we also get together, like me, my sibling, and my cousins too. We all come together and in grandma house, and we made so many memories there. Like we went to see the agriculture and the farmers, which we can't see in city. Now I'm living in city, so I really miss that memories, because in city we can't see the farmers and the agriculture and the climate like that. And in my childhood, we always went to grandma house for vacation, and we went to see the agriculture and that type of things. We also we used to play carom and the hide and seek games like that. ओके, माशाल्लाह, अच्छा बेटी, स्पोक ग्रेट। एनीबॉडी एल्स? 3-4 बच्चे बोले हैं बस, और लोग बोले ही नहीं है। सारिया अफशीन, मेरा बेटा। Sir, वालेकुम अस्सलाम। sir, I'm still my childhood. I'm enjoying my childhood. I have keep a schedule for school to wake up early and to get ready to school. When I go to school, I play with my friends. In break time, I play with my friends and we eat together and we share some snacks with everyone. I participate in school competitions like national celebration, Independence Day, Republic Day. I give speeches in it. My teachers appreciates me. They support me. After joining your classes, I have improved myself, and my teachers are telling you are speaking well, and they appreciate me to participate in other competitions. Last time in Teachers Day, I hosted in Teachers Day. My teachers supported me. During summer, during holidays, I spend my time with cousins. I play with them. Sometimes with my cousins and with my family, we go to vacations like waterfalls. Recently, I have visited waterfalls. This is how I am enjoying my childhood, sir. माशाल्लाह, क्या बात है भाई।
अमेजिंग मेरी बेटी, बहुत अच्छी बोली बच्ची, शाबाश बेटे, माशाल्लाह। यमाना रईस। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। I was the first child at paternal side, so everyone celebrates my birthday like them and enjoy very much. Uh, as I am the first child, everyone loves me a lot compared to others, and when I was because of because I am the first child. Whenever I cries, everyone tried to stop me crying. And at during vacation time, me, my cousins, we used to do our vacation homework or projects together, and we play together. And at that time, we didn't have any type of tension of homework or studies that we have today. And that time is too much amazing and very good. ओके, माशाल्लाह, अच्छा बेटी, शाबाश। नफीसा। My childhood is very simple and peaceful. I like badminton and skating, but my mom never allowed me uh, to play, so I didn't go play. But my sister and my brother many time fights and uh, many time play uh, in house. सर मुझे ध्यान है। ओके ओके, शाबाश शाबाश, अच्छा बोली आप बाबू, बढ़िया। ओके जी। देखिए, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं आपको नजर आ रहा होगा क्लास में। अब्दुल कलाम, आप भी नहीं आते हैं बाबू बोलने के लिए कभी। अर्श, आपको बोले हुए 2 महीने हो गए हैं। अताउल्ला, आप आ जाते हैं। आयशा सैयद, आपको ही पता नहीं है कहाँ हैं। फातिमा मंसूरी, आप भी लापता हैं बेटी। फातिमा शाह, आप तो आई थी। हाजिरा, आप भी लापता हैं। इब्राहिम शेख, आपका पता नहीं पिछले 2.5 महीने से कहाँ हैं आप। खालिद, आप भी कम आ रहे हो बाबू। कुसिया, 2 महीने से गायब हैं बेटी आप। और काशिफ बेटा, आप दबा के मस्ती कर रहे हो पिछले 2 महीने से। रिजवान, आप भी कभी आते हो और मोस्ट ऑफ द टाइम गायब। नफीसा आती हैं, अच्छा है। नाजनीन भी आती हैं, बेटा ऊपर करिए ज़रा। ये फीडबैक दे रहा हूँ आपको बाबू, ठीक है, जो स्टूडेंट आए हैं उनके बारे में। जुनैरा, आप आती हैं, परफॉर्म करती हैं। जाकिरा, सम टाइम यू कम एंड परफॉर्म। यमाना रईस, आप आती हैं बेटी। और सारिया अफशीन, ऑलवेज कम। रोज़ी, ऑलवेज कम। नाजरीन शेख, ऑलवेज कम। ये जो बच्चियां हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये वो हैं जो आते हैं, और जिनका नाम लिए हैं वो हैं जो आते ही नहीं हैं। आते ही नहीं हैं, हाँ क्लास में आते हैं, बरकत लेने आते हैं बस वो, है ना, और बरकत लेके चले जाते हैं। उनको बरकत ही चाहिए बच्चों को। अरे मेरे बेटे, टाइम निकल रहा है, टाइम कहाँ हो, टाइम निकला जा रहा है सच में। आप बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत। सोचो, थिंक अबाउट इट, थिंक ऑफ इट, इसके बारे में सोचिए आप। क्यों नहीं हुई अंग्रेजी का लेवल, क्यों नहीं आया यहाँ तक? क्या आप बगैर तैयारी के लिख के बोलोगे हर चीज अभी भी यार? लिखने की जरूरत पड़ रही सारी चीजों को, क्यों? व्हाई डू यू नीड टू राइट ईच एंड एवरीथिंग? इवन इफ आई गिव यू द टॉपिक, a short topic to speak on, you need to prepare something by writing. Why? That is the question. Give the answer to yourself, not to me. क्या वजह है? ये आप अपने आप से सवाल करें भाई साहब, सब लोग अपने आप से सवाल करें, खुद ही जवाब अपने आप से लो। बताइए मैं क्या करूं इसमें? मैंने, मुझे जो करना था आपको समझाना, आपको मोटिवेट करना, मैंने किया भाई, और कंटिन्यूअसली अभी भी करता हूँ। झंझोड़ता हूँ आपको, हिलाता हूँ थोड़ा सा कुछ,
वो आ जाए। लेकिन होता यही है कि जो बच्चे आते हैं वो आते हैं, और जो क्लास में आते तो हैं लेकिन न कैमरा उनका ऑन, न कभी कोई परफॉर्मेंस करनी है आके। और जब से लास्ट मंथ शुरू हुआ, जब से एडवांस लेवल सा लगा है, तब से ये गड़बड़ है। उससे पहले आते थे, कौन आ सकता है, क्या तुम आ सकते हो, मुझे आना चाहिए, दबा के सेंटेंस बनाए सब लोगों ने। जब से मैंने लेवल इधर किया है, टॉपिक्स, डिबेट्स, सिचुएशंस, तब से पीछे हटने लगे। ये तभी से सूरत हाल आई। क्यों आई भाई, यही सवाल है। व्हाट? जी, ट्यूसडे वुड बी योर लास्ट क्लास। ट्यूसडे। और आपको हैरत होगी, 9 PM में इतने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, बेपना, सच में। और मैसेज आ रहे हैं, सर कब से शुरू हो रहा है, कब से शुरू हो रहा है। मैंने कहा मेरे मैनेजर से बात करो, वो जवाब देंगे। एक ही में 9 PM वाले सामने बैठे हैं मेरे, समझाते समझाते भाई क्या लफ्ज बोलूं। मैंने तो इतना समझाया यार, शायद कोई नहीं समझाएगा टीचर। उनके बेटा ऐसे कर लो, बच्चे यूं कर लो, वैसे कर लो, कैमरा ऑन रखा करो, ये रखा करो। कुछ लोग कैमरा ऑन रखा करते थे आप में से, उन्होंने वो भी बंद कर दिया। उन्होंने सोचा सुनाना ही नहीं है तो कैमरा ऑन करके क्या फायदा। हाँ, लेकिन 2-3 बच्चे हैं मुस्तकिल कैमरा ऑन उनका, जिन्होंने मुझे भी कॉन्फिडेंस दिया है क्लास में रहने का, सच में। ये 4 बच्चे तो अभी भी बैठे हैं मेरे सामने, इन्होंने कॉन्फिडेंस दिया मुझे। अफशीन फातिमा, सारिया अफशीन, रोजी, नफीसा, मुस्तकिल कैमरा ऑन। शायद कभी बंद हुआ हो, शायद। 6 महीने के अरसे में इनका कैमरा बंद नहीं हुआ है, आज भी खुला हुआ है, देख लो। अब अगर सपोज करो मैं अपना कैमरा बंद कर दूं, देखो क्लास पता है कैसी लगेगी। अभी दिखाता हूँ। बेटी आप कैमरा बंद करिए अपना, अफशीन, सारी आप भी, रोजी आप भी, नफीसा आप भी, बंद करो। यस, करो बेटी, आप भी करो। अब मेरा भी बंद है। अंधेरे के अलावा कुछ नजर आ रहा है बेटा? कुछ नहीं। मुझे भी ऐसा लग रहा है मैं कहाँ बैठा हूँ। सच में मुझे ये लग रहा है कि मैं बैठा कहाँ हूँ, मैं क्लास में ही नहीं हूँ। नहीं नहीं, वो अच्छी बात है बेटी, मतलब मैंने कभी किसी बच्चे को फोर्स नहीं किया कैमरा ऑन करने पे, मोटिवेट किया है। हाँ, जिनके घर से नहीं है तो परमिशन नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है, तो ठीक है। मैंने कभी किसी बच्चे को कभी फोर्स ही नहीं किया। अगर किसी बच्चे को फोर्स किया हो तो आओ यहाँ हैंड रेस करो कि सर आपने मुझे किया है। कभी नहीं किया ना बेटा, करता ही नहीं हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ कि मुझे हौसला मिलता है ना। भाई मेरे सामने बच्चा बैठेगा, मैं तभी तो बात किससे करूँ मैं, दीवार से करूँ क्या? भाई बात भी तो करूंगा मैं, सामने मेरे होगे तो आप। ये है मसला असल। खैर कोई नहीं, गुजर गए 6 महीने। अब टॉपिक रहेगा एक आपका लास्ट। कल का टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, जिस पे आप कल और परसों बोलेंगे। उसके बाद जब आप मंडे में आएंगे, आपने क्या सीखा, क्या हासिल किया, उसको आप इंग्लिश में भी बता सकते हैं, हिंदी में भी बता सकते हैं। ठीक है? और वो आपको फीडबैक देना है, बस छुट्टी। बाकी ना मैं अब किसी से ये कहूँगा कोई क्लास ज्वाइन करो मत करो, ना किसी को ये कहूँगा कि 10 PM में जाना है नहीं जाना है। क्यों? भाई साहब कई बार बताया जा चुका है, तो अब नहीं, अब नहीं। ये तो वहां होता है, पता है कहाँ?
बताइए यार, 9 PM के मेरे बच्चे चले जाएंगे और मेरे पास तो स्टूडेंट भी नहीं पढ़ाने यार। अभी लोग भी चले जाएंगे तो मुझे कोई पढ़ाने का वाला बच्चा ही नहीं मिलेगा। क्या करूँगा मैं? 100+ स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं आपके 9 PM में, 100+। और अभी 8 दिन है, 7 दिन तकरीबन क्लास शुरू होने के। 100+, मुझे आज बता रहे थे मेरे मैनेजर, और उन्होंने दिखाया मुझे मैसेज की लड़ी है। 9 PM में इतना क्रेज है बच्चों का आने का। आपको हर चीज बताई गई है, हर चीज। तो बेटा, अपना खुद फैसला करो, आपको करना क्या है। क्या सच में आपको अपना लेवल बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, खुद अपने आप फैसला। सब समझदार हो, सब। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको समझ नहीं आ रहा हो। सबको सबको समझ में आता है माशाल्लाह। और मेरी तरफ से जो है भाई, मैंने हकीकत बता रहा हूँ, मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने हमेशा आपके फायदे की बातें कही हैं, हमेशा। मैंने कभी अपना, जैसे उल्लू सीधा करते हैं ना लोग, कभी नहीं चाहा, कभी नहीं। मैंने हमेशा सोचा यार ये बच्चा जुड़ा हुआ है, इसका फायदा हो जाए यार, इसको ये बात बता दो। कितने बच्चे आप में से उनको पर्सनली अलग अलग मशवरे दिए हैं कि बाबू आप ऐसा कर लो, आपके लिए ये चीज़ बेहतर हो सकती है। लेकिन खैर खाई सोची, कभी ऐसा नहीं सोचा, कहता था चल कौन बता रहा है यार, मेहनत करना ही कर लेना, मुझे क्या जरूरत है इनकी, ये चले जाएंगे तो दूसरे आ जाएंगे। कभी नहीं सोचा, ये सोचा कि यार ये मेरे बच्चे हैं, इनका फायदा होना चाहिए, आज अगर कामयाब हो गए तो दुआएं देंगे। ये इंटेंशन लेकर बढ़ाता हूँ आपको मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इंटेंशन लेकर। वो बच्चा था एक, कौन से बैच में था, अभी आपसे पहले, 8 PM, 8 PM में एक बच्ची थी, तो वो सेंटेंस नहीं बना पाई, बराबर में उसका भाई वगैरह बैठा तो उसने बना दिया। तो मैंने उस बच्ची को कहा, मैंने कहा बेटी तुमसे अच्छा तो उसी ने बना दी, तुम्हारे बराबर में है। तो बच्ची सहम गई। मतलब उस बच्ची को ये लगा कि सर को पता चल गया कि मेरा भाई भी मेरे साथ पढ़ता है। तो वो थोड़ा सा वो हो गई एकदम, एक्सप्रेशन से पता चल जाता है ना बच्चे के। तो वो थोड़ा सा वो हो गया कि यार सर अब मुझे डांटेंगे, कहेंगे कि भाई तुमने तो अकेले ने फीस दी है, तुम्हारा भाई कैसे पढ़ रहा है साथ में। मैंने वहीं कहा, मैंने कि आपके घर में जितने लोग हैं सबको मेरी क्लास में बिठाया करो, सब पढ़ें। बच्ची थोड़ा सा खुश हुई वो। तो उसने बताया सर वो मेरा भाई है, सर वो ना हिफ्ज कर रहा है सर, तो उसको वक्त नहीं मिलता है। उनके बेटी मैंने तो ये कहा ही नहीं आपसे, मैं तो कह रहा हूँ पूरे घर को बुला लो, भाई को क्यों पढ़वा रही हो भैया, पूरा घर को बुलाओ। अरे घर छोड़ो, पूरा खानदान बुला लो, आप तो सबको पढ़वाओ। लेकिन चूंकि एक बच्चा इनरोल्ड है मेरे यहाँ, तो वक्त आपको इतना ही दूंगा जो एक बच्चे को देता हूँ, बस। और जगहों पर आप लोगों ने शायद क्लास ज्वाइन की होगी, उन लोगों के यहाँ बहुत लोगों के यहाँ शर्त है कि कैमरा ऑन करें आप, ताकि वो ये देखते हैं एक ही बच्चा पढ़ना चाहिए, दूसरा नहीं पढ़ना चाहिए। ये तंगी अपने यहाँ नहीं है। मैं तो कहता हूँ जिस इलाके को सबको पढ़ा दो, आ जाओ बुला लो सबको क्लास में। मैं तो चाहता ही हूँ कि जो मेरी जानिब से निकलने वाला फायदा है, अल्लाह पाक उसे आम कर दे। और यही वजह है कि मैंने अपने आज तक एक भी रिकॉर्डिंग सेशन को एडिट करके नहीं रख रखा है। जैसा होता है एज इट इज पब्लिक कर देता हूँ उसको, पब्लिक। लोग मेरे पास कहते हैं कि सर आप अजीब आदमी हैं। मैंने क्या हुआ भाई साहब, कि वो आप चाहें तो ये जो सेशन रिकॉर्डेड आप डाल रहे हैं हमें दीजिए आप, हम इनका आप एक अच्छा सा एक सेट बना कर देते हैं। एक इंटरमीडिएट का हो जाएगा, एक एडवांस लेवल का और एक बिगिनिंग लेवल का। आप हर सेट को 1100 1200 रुपये में बेच सकते हैं। और इतने, और बेचना हमारा काम है, परसेंटेज तय कर लीजिए आप। मुझसे कह रहे हैं भाई साहब, कैसा है, आप जहाँ रहते हो वहाँ वो भी बच्चे रहते होंगे जो फीस नहीं देंगे, वो कैसे पढ़ेंगे। अबे वो मेरे रिकॉर्डिंग सेशन देख कर पढ़ेंगे। मुझे मैसेज करते हैं बच्चे, सर हमारे पास पैसे नहीं है, आपके रिकॉर्डिंग सेशन देख कर पढ़ रहे हैं हम। वो तो उनको भी तो फायदा होना है, उनको कैसे होगा। तो मैं अगर चाहता तो पब्लिक नहीं करता, हालांकि मुझे पब्लिक करने में कोई फायदा नहीं है, सच में नहीं है।
मुझे तो उनको रिकॉर्ड करके देने में फ़ायदा था, क्योंकि वो मेरे सेल होते उधर, लेकिन मैंने नहीं किया। तो मुझसे कह रहा है अजीब आदमी। मैंने कहा भैया अजीब आदमी हूँ, अब मुझे तुम बेवकूफ़ कह लो या अक्लमंद कह लो, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ़ कह लो, मैं सही हूँ, बेवकूफ़ हूँ मैं। मुझे ये वाली बेवकूफ़ी अच्छी लगती है जिससे दूसरों को फ़ायदा हो बस। तो बहरहाल, इसलिए मैंने कोई भी, जब से क्लास शुरू की है अब तक, कोई भी मेरा ऐसा नहीं है कि जो मैंने उसको अनलिस्टेड वगैरह प्राइवेट कर रखा हो, सबको पब्लिक कर दिया है। अरे लोग फ़ायदा उठाएं, पता नहीं कौन कौन सा बच्चा कितना नेक हो, उसकी ज़बान से दुआएं निकल जाएं तो वो लग जाए, बस इतना काफ़ी है। गुनाह तो होते ही रहते हैं, दिन में 50 करोड़ों हो जाते रहते हैं। कम से कम कोई तो बच्चा होगा दुआ देगा कि अल्लाह पाक, इस बंदे से मैंने ये चीज़ सीखी, तू इससे राज़ी हो जा और इसके लिए जन्नत लिख दे। मेरा बेड़ा पार है, ये चाहता भी हूँ। तो बहरहाल बच्चों, सच में आप सब लोग मेरे नज़रों में ना बहुत अहमियत के हामिल हो। सच में आपने मेरे साथ यहाँ 6 मंथ तक दिया है। आप सबसे अना उहिब्बुकुम जमीआ, सच में। लेकिन यही है कि अब मैं क्या करूँ यार, मेरे हाथ में कुछ है नहीं। मेरे हाथ में कुछ इस तरह का होता ना कि आपको सिखा वो दे दूँ आपको और आपके ऊपर मंत्र पढ़ दूँ, सुबह को तुम बढ़िया निकलो, तो मैं वो भी कर देता। है ही नहीं बाबू, अल्लाह ने बनाया ही नहीं यार। अगर अल्लाह पाक बना देता तो मैं सच में पढ़ देता। मेहनत, बस यही मंत्र बनाया है एक, इसका नतीजा निकल के आ जाता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, है ना, सब लोग अच्छे बच्चे हो माशाल्लाह, ज़हीन हो सब। गौर करना अपने बारे में, अपना लेवल चेक करो, हमारा लेवल क्या है। किसी को मशवरे की ज़रूरत हो तो मैं पर्सनली मशवरा भी दे देता हूँ, दिया भी है मैंने काफ़ी सारे लोगों को आप में से। और बल्कि काफ़ी सारे लोगों को मैंने पर्सनली अपनी राय भी पेश की है कि आपको ये कर लेना चाहिए। ठीक है, तो वो वैसे ही नहीं है, वो रैंडम बस ऐसे ही मैसेज उठा कर भेज दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई। तो बहरहाल, कल का जो आपका टॉपिक है वो मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, आपको उस पर बहुत ज़ोरदार अंदाज में तैयारी करके आना है ना बाबू। अब्दुल कलाम क्या बताइएगा, मुझे पर्सनली बता दीजिएगा आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।